We take pre acquisition profits, post acquisition profits, or total profits. Both. Both, which means total. So, and last is when we talk about reserve and surplus. For the reserve and surplus, we take into consideration pre, post, or total. Post, ma'am. Post. Post. So let's come to preference share now. Like I said, page number 12.30, all of you. So please note there is a possibility that you will be given in the balance sheet certain preference shares. Now these preference shares that you are given will be in the books of S Limited, which means subsidiary company basically. When we are saying in subsidiary, they have shown preference share capital. Technically, if it does not mention that the preference share, some portion of the preference share capital has been bought as investment by the holding company, it obviously means that these preference shares are not held by the holding. Therefore, they are held by some outsider. So when they are held by the outsider, it automatically means that this preference share capital will be used or will be shown in minority interest. I repeat, when the holding company has not bought any portion of preference share capital, it obviously means that some outsider holds this preference share capital. And if some outsider is actually holding this preference share capital, it means it will be shown in the minority interest. That's point number one. Having said that, like I said, come to page number 12.30. I'll give you some time to read that also. Here only all this has been mentioned, but excuse me. Please notice that when we are calculating the minority interest, we are not only considering the preference share capital, but to that we are also adding the dividend. Whatever is the dividend is being added here. Now the second point is there is a possibility, just like we said that holding company holds certain share capital in the subsidiary. Maybe in the question you are given that certain share of preference share capital is held by the holding company. Now obviously when certain preference share capital is held by the holding company, you will have to consider that in the calculation of कौन सी calculation में use करोगे? Anyone? बोलो. I'll just wait for your answer. In the calculation of, फिर से बोलो, तेज बोलो. Cost of control. Yes. Cost of control. Okay. Now this dividend that you are actually paying to the preference share capital, this dividend that you are actually paying to the preference share capital will be deducted from where? इसको पे करोगे कहां से? Any idea? Just think about it. I'm repeating. I'm saying हाँ सरप्लस से तो करोगे, लेकिन पॉइंट ये है ना किसके सरप्लस से करोगे? होल्डिंग के सरप्लस से या सब्सिडरी के सरप्लस से? Ma'am, can you please repeat the question? Yeah, I'm saying when you are paying the dividend to the preference share capital, this dividend will be paid from surplus, that is right. But from which surplus? Holding surplus or the subsidiary surplus? हम होल्डिंग से देंगे सर. नहीं, होल्डिंग से क्यों देंगे? अगर दो केसेस है ना, पहले तो ऊपर देखो, पहले तो यहाँ देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम तब कंसिडर करते हैं जबकि होल्डिंग ले ही नहीं रहा है इसको. अब ये वाला केस है, अगर फॉर एग्जांपल होल्डिंग का कोई शेयर ही नहीं है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, द फर्स्ट केस वेयर देयर इज नो शेयर ऑफ होल्डिंग इन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो कहां से दोगे? सब्सिडरी से दोगे. एग्जैक्टली, बिकॉज सब्सिडरी का है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, होल्डिंग का उससे कोई मतलब नहीं है, होल्डिंग का उसमें कोई क्लेम नहीं है. सो इन दिस केस यू विल डिडक्ट द डिविडेंड फ्रॉम द सब्सिडरी. हम इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. हाँ, आ सकते हैं. देखो ऐसा है, एडजस्टमेंट है.
एडजस्टमेंट कोई हो सकता है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई एडजस्टमेंट ना है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन एटलीस्ट सम एडजस्टमेंट शुड कम। लाइक फॉर एग्जांपल, इसके बाद हम थोड़ी डिबेंचर के बाद हम एक और करेंगे, आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है थोड़ा जो टेक्निकल है और इम्पोर्टेंट है, तो without adjustment तो I don't think you should get a question. Maybe at least revaluation of asset or something, some adjustment you should get. मैम एक डाउट था मैम, हाँ बोलो। ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें एक्विजिशन जो है वो 20 साल में हुआ हो? मैं वही बोल रही थी, एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन तो बीकॉम में आना नहीं चाहिए वो, ठीक है। And I have also posted in the teachers group also. I just want to take a view of other teachers, because you know sometimes what happens, they give in the guidelines but still they give the question, so तब बड़ी problem हो जाती है। तभी अभी मैंने उस पे focus नहीं किया है। I have left it for the time being because I want to get an idea from the university teachers what are they doing in their colleges. For BCom honors we do it, there is no doubt. We always do जो विद इन द ईयर आप एक्वायर करते हो, लेकिन बीकॉम का क्योंकि गाइडलाइंस में क्लियरली दिया है कि नहीं करना है, ठीक है, तो अभी तक I haven't really been able to reach a consensus. Just give me some more time, I'll get in touch with them, let me ask are they doing it or not. If they are not doing, then we will also not do, but if anybody says that they are doing, then we'll do it, ठीक है। Okay. And in case you have your Excuse me, friends, ma'am. in case you have your friends in other colleges, you can find out from them also. Yes, Karthik, बोलो। मैम इन क्वेश्चंस लाइक दिस मैम हमें हमेशा प्रेज्यूम करना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ही रहेंगे? दिया होगा, देखो क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा कि भाई सब्सिडरी का कोई शेयर क्या होल्डिंग ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिया है कि नहीं लिया। अगर तो नहीं दिया है तो यू मैम अगर नहीं दिया हो तो हमें क्या प्रेफरेंस शेयर it is minority interest, it is obvious. ओके मैम। In that case it is obvious, it is minority interest, ठीक है। So yeah, I'm giving you 5 minutes to please read page number 12.30. All of you please read, just read, and then I'll get back to you and then we'll do a question. Just let me know when you're done, huh? I'm waiting. Am I there? Yeah, बोलो। मैम इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें कि अगर सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं होते हैं टू पे ऑफ द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन इट इज नॉट appropriate to pay them from consolidated balance sheet of both the companies. हाँ, पॉइंट नंबर बोलो। फर्स्ट ही है, हाँ नोट फर्स्ट। हाँ बोलो, अब बोलो। मैम to the extent of existing surpluses of the subsidiary company से मतलब वही है कि हम वही सब्सिडरी कंपनी के जितने हैं उतने ही देंगे, उसके अलावा हमें नहीं देने। ना उसके पास होगा उतना ही दे पाओगे ना, उससे ज्यादा कहाँ से लाओगे। होल्डिंग Suppose के नहीं देंगे। नहीं, सपोज एक्चुअली डिविडेंड 15,000 का है, लेकिन सब्सिडरी के पास है ही टोटल 10,000, सो यू कैन ओनली पे टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, ठीक है। मैम बाकी अगर मानते हैं मैम अच्छा हुआ तो 20,000, लेकिन डिविडेंड और उसका पेमेंट करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का उसके पास फिर भी 5,000 रुपए बच रहे हैं, तो उसका क्या होगा मैम? फिर एक मिनट, फिर से बोलो। मैम अगर प्रेफरेंस
share capital अच्छा, I got it. It means जो 5,000 बचा है वो बैलेंस शीट value कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा ना? इसका बचेगा उसमें पहले होल्डिंग ले या ना ले। जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम जब रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे तो होल्डिंग और सब्सिडरी का ऐड करेंगे, सब्सिडरी के में से डिविडेंड माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो तो एज इट इज रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में शो होगा ना। ओके ठीक है, ओके। सो आई होप इट्स क्लियर। आई मीन बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा इसमें, बट यस, लाइक आई सेड, बेसिक पॉइंट क्या है, लेट मी सम इट अप फॉर यू and show it to you also. Yeah. So one is, always we presume that the preference share capital will be shown in minority interest, क्योंकि अगर उसने नहीं दिया हुआ कि भाई होल्डिंग ने कुछ होल्ड किया हुआ है सब्सिडरी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो it obviously means outsiders are holding it. If outsiders are holding it, it automatically becomes the minority interest. Now, not only the preference share capital, you will add the dividend also here, whatever dividend is there, और उसको as minority interest you will show. But when it is mentioned that certain portion of that is held by the holding company, automatically, just like we used to do when we will calculate the price that you have paid for the investment minus the nominal value of the share capital. So in that you will include the preference share capital also. So thus for calculation of cost of control, you will use that. Now the next point, which is also given in the book in this form, that let's say whatever is the dividend, you will only be deducting that from the subsidiary surplus, and also to only that extent as much surplus is available. Like I gave you the example, let's say the dividend comes out to be 15,000, but the surplus of subsidiary is only 10,000. You can't pay to the extent of 15,000. So that means you will deduct only 10,000. Okay, let's just understand that with the help of illustration 12. Please take a look at it. Just read it, then I will one by one ask you, and then we'll discuss the question. I hope Excel sheet is visible. Yeah, illustration 12. You have 5 minutes to read the entire question. And after 5 minutes, you have to give me these two answers: date of acquisition and ratio. Ready? Please raise your hand if you're ready. Can we start, Shreya? Mahima, Tanvi? कोई है ही नहीं लगता क्लास में आज, सब सो रहे हैं. मीनाक्षी? I'm doing yes, ma'am. Can we start? Okay, who is telling me what is the date of acquisition? Meenakshi, can you tell me the date of acquisition? 1st April 2019. Yes, Meenakshi, where did you get it from? Balance sheet में है, ma'am. Yes, very good. Yes. बाकी सबको मेरे ख्याल से यहाँ डाउट आ रहा होगा कहाँ से पढ़ लिया इसने. सो प्लीज ध्यान रखें, अगर कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो बैलेंस शीट में बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है 15,000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1st April 2019. सो इट मींस इस डेट पे एक्वायर हुआ है. ओके, नाउ लेट्स सी इफ देयर इज एनी रेशियो और समथिंग. We have the equity shares of S, that is 1,50,000, and we are okay. Is there any ratio? Anyone? No, ma'am. No ratio? What does it mean? इसका मतलब क्या है?
I'm fully acquired equity share. Basically 100%. fully Minority interest. नहीं, क्या बोल रहे हो कार्तिक? आप बोले या आशुतोष बोला? कौन बोला? किसी ने बोला माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हाँ आशुतोष क्या बोला? Minority interest. श्रेया तुम बोलो, क्या बोली? मैम बेसिकली 0% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है ही सारे के सारे खुद ही एक्वायर किए हुए। सो बेसिकली इसका ये मतलब है, अगर आप ध्यान से देखो, दैट द इक्विटी शेयर्स आर फुल्ली हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी 100%. सो दिस, बट दिस इज अबाउट इक्विटी शेयर्स, बट ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है? तो अभी हमने वी डिस्कस्ड प्रेफरेंस शेयर, which means that in this situation, if I see the balance sheet, I see 13% preference shares of 100 each fully paid 1 lakh. Now my question to all of you is, what will I do with this 1 lakh? ये 1 lakh कहाँ show करूँगी? Anyone? Where will I show the 1 lakh? Minority interest. Yeah, so let me just first calculate the minority interest. So what I'll do is, since यहाँ कुछ भी mention नहीं है preference share capital के बारे में, so total preference share capital I'll take here, that is 1 lakh. And I said to you one more thing, that you have to add the dividend also. It is 13%. So it comes out to be, the dividend here is 13,000. And therefore this becomes my minority interest. Is there any question regarding this? Please confirm. Clear hai? So this is my minority interest. Okay. Now let's go ahead. Like we always do, we will find out the cost of control. Now to find the cost of control, let me see the price that I have paid for acquiring of shares. Yes. Who's going to tell me how much price have I paid for acquiring of shares? Anyone? 2 lakh. 2 lakh. Correct. So it's given 2 lakh in the balance sheet. And then I release the cost of shares, or you can say the nominal value or face value or whatever. Nominal value of shares. How much is that? Anyone? 1,50,000. Right. Just hold on. Just hold on. This is 1 lakh. I know that this minus this I can see. I can see 50,000, but having said that, if you remember what we used to do, we used to take into consideration the pre-acquisition pre-acquisition profits also. Now let's find out. See, in the balance sheet, you can see the reserves and surplus. General reserve of S Limited is 40,000 and surplus of S Limited before appropriation is 25,000. And you're given certain adjustment also, which says that S Limited's general reserve and profit and loss account after appropriation for dividends stood at 25,000 and 10,000 respectively on 31st March 2019. Now, what is this 25,000 and 10,000? Anyone? Opening balance, madam. No, don't tell me opening. See, you have to be very clear about pre-acquisition. Yes. So this means I put here pre-acquisition reserve. The first one is pre-acquisition general reserve, I think. Then the second one I have is pre-acquisition surplus, I think. Just a minute. Yeah, and P&L. So general reserve, you're saying it's 25,000 as given, and 10,000 is also given to me. So therefore, now when I calculate, it becomes this, this minus this minus this. Thus, what is this 15,000, anyone? 15,000? Cost of Goodwill. Goodwill, yes. Is it clear? So two things we have already calculated, two major calculations we have done. First is minority interest, because the preference share capital was not held by the holding company. So the entire that I have taken, and I have also taken the dividend of 13,000. Now let me go ahead for the calculation. Ha, bolo. Any doubt?
मैम ये अप्रोप्रिएशन, बिफोर अप्रोप्रिएशन, आफ्टर अप्रोप्रिएशन से कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ मैं बता दूं, एक सेकंड। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एस लिमिटेड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर अप्रोप्रिएशन फॉर डिविडेंड स्टूड एट 25,000। अब जब मैं डिविडेंड का करूंगी ना, अभी लेट मी डू दैट कैलकुलेशन, देन आई विल टेल यू। ओके, सो नाउ आई विल कैलकुलेट रिजर्व एंड सरप्लस, आई नो दैट। सो इट इज क्लियर, मुझे बैलेंस शीट में एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व दिया हुआ है एंड आई हैव आल्सो बीन गिवन एच लिमिटेड सरप्लस। This is actually 50,000 and this is actually 30,000. Okay, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि भाई मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैं कितना दिखाऊं। मेरे को बैलेंस शीट में दिख रहा है कि जनरल रिजर्व 40,000 के हैं, लेकिन नीचे वो कह रहा है एस लिमिटेड जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अप्रोप्रिएशन फॉर डिविडेंड स्टूड एट 25,000 एंड 10,000। पहली बात मेरे को ये भी ध्यान रखना है, इफ यू रिमेंबर आई सेड 13,000 का मैंने डिविडेंड पे किया है, तो मतलब दिखाया है, तो विच मींस मुझे 13,000 का डिविडेंड यहाँ से भी माइनस तो करना होगा। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ बैलेंस शीट में मुझे जनरल रिजर्व दिख रहा है 40,000 का, नीचे मुझे कह रहा है 25,000 का। आई रिपीट, 40,000 का एंड 25,000 का, मतलब 40,000 तो टोटल था, जिसमें से कि ओपन है, सॉरी दिस थिंग प्री है 25,000। ठीक है, विच मीन्स अगर मैं देखूं तो यहाँ आया मेरा 40, हाँ एग्जैक्टली 15,000, यू राइट, माइनस showing you so that there is no doubt, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे, it will come out to be 15,000। अब ये है जनरल रिजर्व। अब मुझे सरप्लस भी दिखाना है, सरप्लस दिखा रहा है मुझे 10,000 का, राइट, एंड ऊपर सरप्लस दिखा रहा है 25,000 का। तो यहाँ अगर मैं देखूं 25,000 माइनस 10,000, मतलब अगेन ये भी 15,000 का है, लेकिन ये जो 15,000 का है, इस 15,000 में से मैंने अभी 13,000 भी तो माइनस करना पड़ेगा, जो मेरा यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, 15,000 कौन सा, डिविडेंड का। इज इट क्लियर और नॉट? पहले इतना बताओ फिर आगे चलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या नहीं? मैम हमने 1 लाख का वो जो कैप उसे भी पे करना था। 1 लाख का कौन सा बेटा? 1 लाख का कौन सा? प्रेफरेंस शेयर मैम, वो तो नहीं होगा, नहीं, उसका सिर्फ डिविडेंड ही देना है ना मैम। वो तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गया ना, वो तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आ गया। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसमें कहीं कुछ गलत लग रहा है तो पहले मुझे बताओ, ठीक है? मैं आपको जान के ये दिया मैंने, जस्ट गिव 5 minutes टू दिस कैलकुलेशन एंड टेल मी, डू यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग? थिंक अबाउट इट। सोच लो। प्लीज चेक एंड टेल मी, क्या ये सही है? Do you think there is anything wrong? Please check and tell me. I'm waiting now. Take your time. कोई जल्दी नहीं है। Ma'am, is it 25,000 minus 10,000 minus 13,000? नहीं, is it का क्या मतलब है? What are you trying to say? मुझे यहाँ पे बताओ क्या गलती है या नहीं है, ये बताओ मुझे। आप माइनस 13,000 और लिख सकते थे हम। नहीं तो वो मैंने यहाँ कर दिया ना, ये देखो ऐसे किया है मैंने, ऊपर देखो फॉर्मूला देखो, ये 15,000 माइनस 13,000, ठीक है ना? वही किया है मैंने, जस्ट लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। यहाँ चेक कर लो, ये मैंने लिखा था 25 माइनस 10, उसके बाद आया था मेरे पास 15,000, तो 15,000 में से मैंने यहाँ 13,000 माइनस किया, तो मेरे पास आया है यहाँ पे टोटल 2,000। और अब उसके बाद और बताओ, और कुछ ठीक है? एनी डाउट? अब एक चीज और है इसमें एक और एडजस्टमेंट है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट। रीड द बी पार्ट।
R Limited sells good at a profit of 25% on cost. Now, what is this relating to? If you remember, we did one adjustment on unrealized profit. किया था, ठीक है? अब unrealized profit, अब बोलोगे यार इसमें ये तो दे दिया, लेकिन दिया कहाँ है, कितना स्टॉक है जिसपे ये लग रहा है? ये दिया हुआ है आपको. Check the balance sheet. Second point, current asset within bracket it is written, including 10,000 stock in trade purchased from R Limited. So it means that 10,000 का जो स्टॉक था वो आपने परचेज किया था आर लिमिटेड से. इस पे तो आपका है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. मतलब ये जो 10,000 है बी पॉइंट में लिखता है आर लिमिटेड सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट. सो लेट मी शो यू यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसी एडजस्टमेंट है. कह रहा है 25% ऑन कॉस्ट. अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो एनीवन, अभी आपके बेसिक्स या 10 11 12 के क्लियर हो जाएंगे. मुझे बताओ अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो 10,000 पे कितना होगा? एनीवन? नो आइडिया. 10,000 into 5/4 हो जाएगा, 8,000 आएगा. हाँ मतलब बेसिकली 2,000 हुआ ना. मैम मतलब 2,000 प्रॉफिट हो जाएगा. हाँ मतलब 20%, राइट? 25% on cost, then 20% on selling price. That's what you're saying. So this is 2,000. So therefore this 2,000 also now, because it is unrealized, so this I need to deduct from here. This I need to deduct from here. I write unrealized. यहाँ पे दो adjustment होगी basically इस question में. पहली adjustment तो हुई preference share capital की, and the second adjustment that we've already done is unrealized profit. So therefore, now my total reserves and surplus that I am going to show in the balance sheet is going to be how much? See, it's going to be 95,000. Is it clear? Please clarify if there is any doubt. Volume. If there is any confusion, we have done two adjustments in the same question. If there is any doubt, please ask. I'm waiting. We just added the unrealized profit on stock to the reserves and surplus balance that we had. I have deducted, not added. Unrealized है ना? Yes, ma'am, minus 2,000 है इसलिए. Yeah. ठीक है? Okay. If there is no doubt, can we go ahead? Okay. We're not going ahead. What I'm telling you to do right now is, please make the balance sheet. Because you know in holding you do not practice the balance sheet and then there is a problem. Please make the balance sheet. You have 10 minutes time, all of you, to send the balance sheet in the chat box. Then only we'll move to the last adjustment for today. Come on fast. क्योंकि adjustments तो बहुत है, मैं एक दिन में बहुत सारी भगा सकती हूँ. But then you know I make it a point that it's clear. एक दो adjustment ही करेंगे, debenture करेंगे इसके बाद. Make the balance sheet and send it in the chat box. I'm waiting all of you.
Come on, major calculations तो हो गई, बस बैलेंस शीट बनानी है आप लोगों को. Fast send me please. हो गया हो गया everyone. Chavi, are you there? Lakshmi, are you there? Lokesh? Yes, ma'am. Done? Ma'am, almost done sending it. Okay, okay, beta. Mahima, what about you? Manali? Manan? Meenakshi? Yes, ma'am. Muskan? Meenakshi done? Almost done, ma'am. Okay, beta. Muskan, what about you? Nikita? Radhika? Rajyoti? Sandhya? Yes, ma'am. Sending Raj? it. Okay. Okay, let me see. Lokesh has sent it, I think. 495 and then okay, then we have minority interest is fine. Non-current debentures of 2 lakh we have, right? Trade payables is 5 lakh 5,000. Property plant 740. 15,000 is your intangible asset. This is 548. All right, fine, Lokesh, that's fine. Okay, so you guys can do it if you're left. I think most of you have almost done. You're on the verge of completing it. So let's do the last adjustment, one more adjustment today, and that is about debentures. Okay, someone has sent. Let me check that also. I think it is Sandhya. Yeah. So 495 is there. Minority interest and okay, fine. You don't have to, Sandhya. Please remember this adjustment that is showing for stock, you will show in notes to account, not here in the balance sheet. Okay. Yes, ma'am. Right. So we go on to the debentures now. So like you remember, we talked about something known as intercompany owing. Similarly, or rather just like preference share capital also, there is also a possibility that you have debentures in the balance sheet. So you might have debentures in the balance sheet of holding company. You might have debentures in the balance sheet of subsidiary company. Now there is again a possibility that holding will be holding certain debentures of S. Or either ways. It means that holding has invested in certain debentures of S, or maybe S has invested in certain debentures of holding. If that is the situation, so it's again like a intercompany owing kind of a situation. So what we'll do is
on the asset side, when you will see the investment, from there we will remove that debentures. And on the liability side also, we will have certain debentures. From there also we will remove. Let's just see that with the help of an example. So you have illustration 13, all of you. Yeah. Ma'am, what to remove from asset side? Yeah, both things. Like for example, अगर suppose वो investment है ना, H की जो investment है S के debentures में, ठीक है, वो S की liability show हुई होगी, लेकिन H की तो investment show हुई होगी ना, उसने invest किया है S के debentures में. Are you getting it? Just like equity shares. Yes, ma'am. Investment and debentures दोनों को less करना है जैसे same हम amount. cancellation of investment करते थे, similarly it's like cancellation of debentures. In short. Okay, ma'am. Right, so we'll see that with the help of an example. I mean, theoretically समझ नहीं आता. So that's immediately the next question, that is illustration 13. Now again I want you to read it and obviously give me the two things, that is date of acquisition and ratio. Please check and then we'll go ahead. और इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि ये चीज है नहीं, but still I'll explain to you, don't worry. इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन भी हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर वाला. And 30th September 2019 is the date of acquisition. This is during the year वाला, जो कि टेक्निकली गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है. तो एक इस टाइप का हम क्वेश्चन भी देख लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा. और एक चीज और है, एक सेकंड 30 से, हाँ ठीक है. How about ratio? Did you check the ratio everyone? 1,50,000. Yeah. कोई रेशियो है? देख लो एक बार. No ratio. पक्का? So we have 15,000 shares. रेशियो तो है भाई, कैसे नहीं है? It means you don't know how to read it. चलो, let me explain. 3:1 का रेशियो है. हाँ, लेकिन let me explain. ये point doubt का हो सकता है, काफी बच्चों को हो सकता है इसमें doubt. Let me explain this point to you, how to get the ratio, all of you. Please see the balance sheet. In the balance sheet, in the non-current investment, it says 15,000 shares in N Limited on 30th September 2019. 15,000 shares. और जब मैं liability side देखती हूँ, equity share देखती हूँ, 2 lakh दिखाता है. 2 lakh divided by 10 means the total number of shares is 20,000. तो 15,000 तो होल्ड किए होल्डिंग ने, बट व्हाट अबाउट द 5,000? इट इज बीइंग हेल्ड बाय द माइनॉरिटी इंटरेस्ट. इज दिस क्लियर? जिसने नो रेशियो बोला था कौन था वो? अच्छा वो आपने बोला, थैंक यू, बट आप थे कौन, नाम बताओ. मी, लोकेश. लोकेश समझ आ गया? यस मैम, यस, गॉट इट. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपने, मुझे नहीं पता, आपने शायद इसलिए बोला कि 1.5 लाख लिखा हुआ है, 15,000 शेयर्स लिखा हुआ है और 2 लाख का खरीदा है और शेयर्स में भी 2 लाख है, इसीलिए हुआ था कंफ्यूजन लोकेश. यस आई. हाँ, तो ये चीज देखने वाली है बहुत ज्यादा. ओके ओके, सो 3:1 is the ratio, that means okay. Now let's understand. So I know, okay, पहले तो डिबेंचर वाली बात कर लेते हैं. I think that is a little easier comparatively. So let me just talk about that adjustment because during the year वैसे भी we're not sure if we are supposed to do it or not. So let's not complicate. पहले let's understand debentures. So when I make the balance sheet, all of you, please note. When I will make the balance sheet, in the balance sheet, please note, I said investment. मैंने बोला क्या हुआ इसमें? वो लिखता है debenture of N Limited at par 50,000. And debenture of M Limited at par 60,000. Also, मैं जो दिखा रही हूँ 15,000 shares in N Limited is 2 lakh. Now my question to all of you is that I will obviously be showing this investment that is non-current. Property and plant हो गया आपका, ठीक है, total आ जाएगा. And then you will get the non-current investment. अब देखो, all of you remember, non-current investment तो कभी आती नहीं in the sense होता क्या है, मैं उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में निकाल लेती हूँ, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और उससे मेरे पास जो गुडविल आ जाती है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ. आई वांट टू रिपीट दिस फॉर यू. सी, बैलेंस शीट में 2 लाख का दिखा रहा है और 50,000 के डिबेंचर्स एन के दिखा रहा है और डिबेंचर्स एम के दिखा रहा है 60,000. ठीक है, इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ यू करेक्टली, ये जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है मैं बैलेंस शीट में दिखाती नहीं हूँ. क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि मैं यहाँ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट करती हूँ. कैसे करती हूँ? प्राइस ऑफ शेयर्स
पेड में लिखती हूँ 2 लाख, ठीक है, और उसके बाद लिखती हूँ कॉस्ट ऑफ शेयर्स या नॉमिनल वैल्यू, लेट्स से नॉमिनल वैल्यू। आई नो दैट, जस्ट अ मिनट, कितनी होगी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, एनीबडी? हाँ जी, 1,50,000। ठीक है, ये भी तो यहां तक तो मेरे पास आया दिस माइनस दिस, लेकिन अब मुझे इसके प्री Your screen is not visible. Oh, thanks for telling. Okay, just hold on. Is it visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स वगैरह वो सब करने हैं, उस पे मैं अभी आती हूँ। लेकिन जब मैं बैलेंस शीट, hence what I'm trying to prove to you is that यहाँ मैंने कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट तो कर दी, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दी, which means that cancellation of debentures, it means मैं बैलेंस शीट में कोई भी debentures of N limited नहीं दिखाऊंगी एसेट साइड पे, एंड debentures of M limited नहीं दिखाऊंगी एसेट साइड पे, पहली बात, ठीक है। Secondly, let's go back to the debentures. If you have, just hold on. Yes, let's go back to this point in the balance sheet in the question of long-term borrowings. Long-term borrowings मुझे दिख रही है debentures की 2 lakh and 1 lakh. Now there is a problem. What is the problem? जब मैं बैलेंस शीट बनाने चली होंगी तो मैं लिखती हूँ let's say long-term borrowings, और यहाँ पे मैं notes to accounts की बात कर रही हूँ, debentures लिखती हूँ, ठीक है। debentures मुझे दिए हैं debentures M के debentures दिए हैं 2 लाख, tell you the adjustment, और N के दिए हैं is I think 1 lakh. Now note, now let's read it with the asset side. कहता है that debentures actually M के तो 2 लाख debentures है भाई, 2 लाख debentures M ने इश्यू की है, लेकिन इस M में से debentures of M limited at par, please note in the balance sheet all of you, देखो दो चीजें दी हैं, एक दी है debentures of M limited at par, M की बैलेंस शीट में एसेट में दिखाए हुए 50,000, M की बैलेंस शीट में M ने मतलब ये 50,000 डिबेंचर्स किससे लिए? N से लिए, मतलब मैं यहाँ पे ये माइनस करूंगी 50,000. लेट मी शो इट टू यू, वेट, इसको बड़ा कर दो। ये इंटर कंपनी ओइंग्स का कॉन्सेप्ट है क्या? एग्जैक्टली, हाँ वही बोल रही थी ना मैं, वही है। और लेकिन आगे एक और चीज बोल रहा है, कह रहा है ये तो थे 50,000, फिर कहते हैं डिबेंचर्स ऑफ M लिमिटेड एट पार 60,000, मतलब N के पास M के 60,000 डिबेंचर्स हैं, सो 2 लाख में से मेरे माइनस हुए 60,000. दिस इज टेक्निकली इसको मैं एक्चुअली कह सकती हूँ इंटर कंपनी ओइंग भी कह सकती हूँ और कैंसिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकती हूँ, यही तो मैंने इक्विटी शेयर में भी किया ना, आई डिड द सेम थिंग. सो जो भी मैं इन्वेस्ट करूँ, चाहे मैं इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करूँ उसके, चाहे मैं उसके डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करूँ, सो उसके मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो इसीलिए मैं उसे कैंसिल कर रही हूँ दोनों जगह से, जस्ट लाइक वी स्टार्टेड द चैप्टर विद. सो दिस 1,90,000 आई विल शो इन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ओके, टिल हियर इज देयर एनी कंफ्यूजन? Till here is there any confusion? ठीक है, No, ma'am. एक चीज और नोटिस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखा है अदर करंट लायबिलिटीज इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स फॉर 1 year 30,000 and 15,000. प्लीज नोट ऑल ऑफ यू, इस 30,000 और 15,000 में क्या कोई एडजस्टमेंट करनी होगी? एनीवन? बिल्कुल करनी होगी. क्या करनी होगी? इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा दोनों का. 50,000 में से कितना इंटरेस्ट है वो माइनस करूंगी, 60,000 में से कितना इंटरेस्ट है वो माइनस करूंगी, बिकॉज जो भी कॉमन चीजें हैं उनको मुझे माइनस करना पड़ेगा. सो बिकॉज मैं उसे अदर करंट लायबिलिटी में से माइनस करूंगी, मैं उसको अदर करंट एसेट्स में दिखाऊंगी अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, सो माइनस करूंगी वहां से भी. ठीक है, नाउ
अब मुझे हम ये इंटरेस्ट बताओ, आएगा कहाँ से? परसेंट तो हाँ, दिया ही नहीं डिबेंचर्स का। मैं बताती, रुक जाओ। परसेंट नहीं दिया, लेकिन आपको रेशो तो दिया है ना, इन द सेंस 50,000 उसका है। अगर उसका इतना है, देखो 2 लाख का, 1 मिनट, एम के डिबेंचर्स है मेरे पास, होल्ड ऑन, 2 लाख, ओके। 2 लाख पे अगर 30,000 है, 2 लाख पे अगर 30,000 है, तो क्या मैं निकाल नहीं सकती? यूनिटरी मेथड, इज इट क्लियर? निकाल के देखो। 2 लाख पे 30,000 है, तो मुझे कितने पे निकालना है? ये है मेरे एन के डिबेंचर्स, किसके? एम के, एन के, एम के हैं। तो एम के हैं, तो हाँ 60,000 पे निकाल लो। यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ अगर आपको डाउट हो रहा है। 2 लाख पे है 30,000, तो 60,000 पे हो गया 9,000। यूनिटरी मेथड बच्चों कौन सी क्लास में करते थे? 5th क्लास। इज इट क्लियर? हेलो, यस मैम क्लियर। ठीक है ना? ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, तभी मैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं कराऊंगी आज, इसी पे स्टिक कर रही हूँ मैं, जस्ट ओके, ठीक है, क्लियर है? अब मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ। अब मुझे ये आप डिसाइड करके बता दो कि आप ड्यूरिंग द ईयर वाले का कैलकुलेशन देखना चाहते हो, नहीं चाहते हो, क्या चाहते हो? पहले आपस में डिसाइड कर लो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज डिसाइड। तो मैं कराऊंगी, ये नहीं बोलना मुझे ज्यादा करा दिया, कम करा दिया। मैं लेट मी कर रहा हूँ पक्का। आपस में डिसाइड करो पहले। मैं 5 मिनट दे रही हूँ, आपस में डिसाइड कर लो। मैं यहाँ से गायब हो रही हूँ ताकि तुम आपस में डिसाइड करके मुझे जवाब दो। बोलो भाई किसको पढ़ना है? हैंड्स रेज कर लो ना यार, जिसको करना है। जिसको पढ़ना है 100 कर दो। हाँ जी, क्या डिसाइड हुआ? कुछ डिसाइड हुआ? किसी को नहीं? आशुतोष, तुम्हारी ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। व्हाट हैव यू डिसाइडेड ऑल ऑफ यू वांट टू डू और नॉट? मेजॉरिटी डोंट वांट टू स्टडी। ठीक है, तो मैं इसको अभी होल्ड पे रख रही हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई इशू नहीं है। वी विल पुट इट ऑन होल्ड, लाइक आई सेड। मैं अभी आई विल गेट अ आइडिया फ्रॉम अदर टीचर्स आल्सो इन अदर कॉलेजेस। यू कैन आल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू विल हैव फ्रेंड्स इन अदर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, कि ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन का वो करा रहे हैं कि नहीं करा। बट देन डिबेंचर्स का पॉइंट तो था, तो वो हमने कर लिया। बट बिफोर आई गो हेड, I still want you to do the balance sheet, please, all of you, and then we'll wind up the class for today, please. Please do the balance sheet. And if there is a doubt, please ask. 5 minutes you have. अब आप बोलोगे मैम बैलेंस शीट कैसे करें? बोला नहीं तुमने यार कि भाई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे आएगा, मैम हम कैसे करें? यस मैम। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। सुनो, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोई और पॉइंट देखना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं बता रही हूँ। ऑब्वियसली आपको दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, कोई इशू नहीं है। सो यू कैन सी द रिजर्व्स एंड सरप्लस दैट यू हैव, यू टेक एज इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन, दैट इज 3,02,500, कोई इशू नहीं है उसमें। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 67,500, उसको एज इट इज पिक कर लो, क्योंकि मैं आपका बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स देखना चाहती हूँ। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट शो मी द ट्रीटमेंट। हाँ, बाकी बैलेंस शीट मैम मुझे, क्या बोला आपने? रिजर्व एंड सरप्लस के आगे क्या बोला? मैंने बोला रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है जो आंसर में 3,02,500, उसको एज इट इज पिक कर लो 3,02,500। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी एज इट इज पिक कर लो 67,500, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आ रहा है आई थिंक गुडविल 20,000 का। ये तीनों चीजें एज इट इज पिक कर लो बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट, बट बाकी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी ना। डिबेंचर्स की एडजस्टमेंट तो मैं देख पाऊंगी ना बैलेंस शीट में। चलो बैलेंस शीट बना के भेजो, कम ऑन।
बच्चे बहुत कम है क्लास में. What is the total count of your class? ऐसा क्यों है? Anyone, any idea? ये जब से पता लिया मुझे लगता है यूनिवर्सिटी अटेंडेंस नहीं लेगी एंड ऑल, इसलिए होता है क्या ऐसा? मैम यूनिवर्सिटी अटेंडेंस नहीं ले रही. पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकती. You never know लॉकडाउन और ये सब. I don't know. I can't comment. भाई पता नहीं, कल को बोलते हैं ले रही है फिर तुम रोते रहो, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती. ओके. बट ऐसा होता क्यों है? मतलब I want to really know. इतने कम बच्चे क्यों? तुम्हारी क्लास का काउंट तो बहुत ज्यादा है. How many total students you have? Around 60-70 I guess. हाँ 60. तो यहाँ क्या 26 बच्चे हैं सिर्फ. Why? आई थिंक लास्ट ईयर ये हो गया था ना कि नहीं लेना और सबने वही कह रही अटेंड. हूँ, वही मैं कह रही हूँ. इसीलिए तो पेपर नहीं देना, फेल होना है या ट्यूशन लगा रखी है? I hope they're expecting for online exam. चलो ठीक है. ऑनलाइन में तो बेटा अकाउंट्स बहुत ही टफ है, ये बता दूं मैं तुम्हें. वो ऐसे क्वेश्चन कहाँ से उठा के देंगे ना, बैठे रहोगे तुम. कहीं मिलेंगे थोड़ी तुम्हें बुक में उसके आंसर सॉल्यूशंस. 50 बुक्स थोड़ी रखोगे अपने पास. ये थियरी वेरी सब ठीक है, इजी होगा ऑनलाइन में. कॉर्पोरेट अकाउंट दे देते हैं. क्या आशुतोष? मैम इसमें भी प्रैक्टिकल में भी पिछले सेमेस्टर में हमारे पास इनकम टैक्स था, उसमें भी 6 क्वेश्चंस में से 3-4 तो थे. बुक में से मिल गया था तुम्हें? मैम थ्योरी आए थे, Yes. थ्योरी. मैम नहीं ऐसा होगा नहीं अकाउंट्स में. मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं बेस्ड ऑन लाइक यू नो, मैं आई वाज जस्ट चेकिंग वन ऑफ द री एग्जाम अकाउंट्स का, तो मैं उस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ तुम्हें. बहुत बुरे क्वेश्चन थे. और आप ये सोचो ना, अकाउंट्स की बुक्स इतनी है. आई मीन एक थोड़ी है जे.आर. मोंगा, बीके गोयल, डीके गोयल, आलोक कुमार. वो कौन सी बुक में से दे देगा? आपके पास सारी बुक्स तो नहीं होंगी. तो इसलिए आई मीन आई थिंक फॉर अकाउंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट ठीक है, तुम लोग तो अटेंड कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जो नहीं कर रहा उसकी प्रॉब्लम है. लेट इट बी. व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम? मैम एनी आइडिया कॉलेज कब मैम इस स्टार्ट वाले होंगे? सब्जेक्ट में मैम हाँ बोलो बोलो. मैम इस वाले कॉलेज सब- जैसे typically हम स्टूडेंट्स के लिए कब स्टार्ट होंगे? श्रेया अभी कोई इंटीमेशन नहीं है, कुछ नहीं बता. आया नहीं कोई नोटिस ना अभी तक. ओके. हाँ जी, होगी बैलेंस शीट. अच्छा एक चीज मेरे को मैम कंफर्म. एक्सक्यूज मी मैम. बोलो 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 कार्तिक. मैम इस हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चॉइसेस आएगी या नहीं आएगी? देखो इन्होंने जो गाइडलाइन दिया उसमें तो इन्होंने लिखा नहीं ना, उसमें इसमें क्लियरिफाई नहीं किया इन्होंने कि भाई कितना देंगे या क्या देंगे. ठीक है, उसका ट्रेंड उन्होंने दिया नहीं. तो मैम लेट मी. यूजुअली पहले के एक्सपीरियंस से आप क्या बता सकते हैं कि आती है नहीं? होता है ऐसे, मतलब होता टेक्निकली ऐसे है कि भाई जैसे अमेलगमेशन दिया तो उसके साथ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चॉइस दे दिया, या अगर आपको कैश फ्लो दिया है तो कैश फ्लो के साथ कैश फ्लो ही दे दिया. होल्डिंग दिया तो होल्डिंग के साथ होल्डिंग ही दे दिया. ऐसे नहीं होगा कि कि आप एक यूनिट छोड़ के चले जाओ. कोशिश ये रहती है कि वो चॉइस आपको ऐसी चॉइस ना मिल पाए कि भाई होल्डिंग के अगेंस्ट अमेलगमेशन दे दिया. ऐसा नहीं होता है. आर यू गेटिंग इट? एक यूनिट के अगेंस्ट दूसरा यूनिट नहीं देंगे, एक यूनिट से एक तो होगा ही. उसके बीच में चॉइस हो सकती है कि होल्डिंग के साथ होल्डिंग का ही क्वेश्चन हो और उसमें चॉइस हो जाए. दैट वे. बाकी एक बार जो गाइडलाइन आपको भेजी है वो भी देखना, मैं उसको भी देखती हूँ, उसको भी थरोली स्टडी करके देखती हूँ अगर उन्होंने इस बारे में कुछ क्लैरिटी दी है कि नहीं दी है. एग्जाम्स तो मई में होंगे ना? हाँ वो तो शेड्यूल तो वही रहेगा. आई मीन उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. बट एनीवे अच्छा मेरे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कंफर्म करनी थी, वो ये कि लास्ट वीक क्या हुआ था. वी हैड आर ट्यूटोरियल विद द फर्स्ट ग्रुप, आई थिंक जिसमें कार्तिक और ये आशुतोष वगैरह थे.